وزیراعظم کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور امدادی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، مشکل گھڑی میں بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم نے مسلح افواج اور سول انتظامیہ کی محنت اور لگن کو سراہا۔ کہا معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ تجاوزات، لکڑی مافیا، غیر قانونی کان کنی اور کرشنگ انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف افواج، پولیس اور سول انتظامیہ کے عملے سے ملاقات، متاثرین کی مدد کے لیے بے لوث خدمات کو سراہا۔ زمینی فارمیشن ذمہ داری کو انتہائی لگن کے ساتھ نبھائیں، سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت۔ کہا شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور ان کی مدد اولین ترجیح ہے۔ سید آصف منیر کا فورسز اور سول انتظامیہ کی انتھک خدمات کو خراج تحسین۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا کلاؤڈ برسٹ سے تباہی ہوئی۔ سوابی، شانگلہ، سوات، بنیر، لوئر دیر اور دیگر علاقوں میں اموات پر ہر آنکھ اشکبار ہے۔ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں عوام کا ان مشکل حالات میں ساتھ دینا ہے۔ تحریک چلائیں گے کہ ندی نالوں کے گرد تجاوزات نہ بنائی جائیں۔ درختوں کا کٹاؤ ہونے سے روکنا ہے۔ درخت ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی۔ بادل پھٹے اور انتہائی شدت سے جو پانی پہاڑوں سے پتھروں کو لے کر، درختوں کو لے کر طغیانی کی شکل اختیار کی اور سوابی میں، شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانچیرہ میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشکبار ہے۔ افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی اور کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمیں ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ، اور افواج پاکستان سید آصف منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ سید آصف منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے افسران کو۔ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے۔ ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کے اس کے آ گئے ہیں۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر اتنی نہ ہوتی۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام سپیریئر یونیورسٹی میں خصوصی سیمینار۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ میاں عامر محمود نے 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے موضوع پر نہایت معلوماتی اور رہنمائی سے بھرپور خطاب کیا۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام سپیریئر یونیورسٹی میں خصوصی سیمینار 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے موضوع پر سیشن کا انعقاد۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان بھی موجود تھے۔ سیمینار سے خطاب میں میاں عامر محمود نے کہا کہ بہترین گورننس، لیڈرشپ کرائسس پر قابو پانا اور صوبائی گورننس سٹرکچر میں اصلاحات کا نفاذ پاکستان کی ترقی کی بنیادی شرائط ہیں۔ حکومت کی پالیسی اچھی ہو تو ترقی ہوتی ہے۔ جاپان 2 ایٹم بم کھا کر بھی ایک معاشی طاقت بن کر سامنے آیا، مگر ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بد سے بدتر ہوتے گئے۔ جاپان آپ نے سنا ہوگا جس میں منرلز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کی مین پاور کے، اور واحد ملک ہے جس میں 2 دفعہ ایٹم بم پھینکا گیا، لیکن پھر اس نے خود کو دنیا کی ایک اکنامک سپر پاور بن کے دکھایا۔
मियां आमिर महमूद ने मजीद कहा कि अगर हम 33 डिवीजन को सूबे बना देंगे तो आम आदमी के मसाइल हल करने में आसानी होगी, आवाम को हुकूमत का काम नजर आएगा, कम आबादी वाले सूबों में करप्शन के मौके भी कम होंगे। इस मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने मिल के ये मुल्क बनाया और यही फेडरेशन होती है। सूबे मिल के एक मुल्क बना देते हैं, स्टेट्स मिल के एक मुल्क बना देती हैं। वे फॉरवर्ड हमें ये नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें। जब हम सूबों की बात करते हैं तो फिर ये 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी। आपका जो एक्सपेंस है ऑन गवर्नमेंट वो कम हो जाएगा। अगर आपके केसेस अदालतों में टाइम पे फैसला होना शुरू हो जाए, ये एक नेचुरल नर्सरी है टू ग्रूम अ लीडर। आप देखते नहीं है इंडिया में एक चाय बनाने वाला कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको लीडरशिप मिल जाएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने मजीद कहा कि किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। गली मोहल्ले के मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। हम लोकल गवर्नमेंट के वजूद से महरूम हैं। जो खिदमत करने की हुकूमत है वो लोकल गवर्नमेंट है, जो आपके मोहल्ले में सफाई करेगी, जो आपके गली को बनाएगी, जो आपको स्ट्रीट लाइट लगा के देगी, जो आपके सीवरेज का सिस्टम आपको चला के देगी, जो शहर में बागात लगाएगी, फूल लगाएगी। हम बदकिस्मती से उस लोकल गवर्नमेंट से महरूम ही हैं। मियां आमिर महमूद ने कहा कि हुकूमत इस वक्त हर बच्चे पर माहाना 4400 रुपए खर्च कर रही है। अच्छे निजी स्कूल के एक बच्चे पर भी इतना खर्च नहीं होता। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई इस लेवल की नहीं हो रही। सेक्रेटेरिएट में बैठकर किसी अफसर के लिए पंजाब के 50,000 स्कूल्स देखना मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से केपी और बलूचिस्तान में शरह ख्वानगी कम है। इस वक्त गवर्नमेंट हर स्कूल गोइंग बच्चे के ऊपर 4400 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इससे कम है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। एक सेक्रेटरी के यहाँ लाहौर सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। सेमिनार के दौरान तलबा ने सवाल जवाब के सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। सेमिनार के इख्तिताम पर चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने मेहमान खुसूसी मियां आमिर महमूद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यादगारी सुवेनियर पेश किया। कराची में बरसात की बात करेंगे, जहां मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश जल थल एक हो गया। शाह फैसल कॉलोनी, तारिक रोड, शेरशाह और इसके साथ लियाकताबाद में भी बादल बरस पड़े। सदर टाउन और काला पुल के इलाके में तेज़ बारिश हुई। शाहरा फैसल पर फिर पानी जमा होना शुरू हो गया। नर्सरी का इलाका झील का मंजर पेश करने लगा। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी ताहाल कई इलाकों से निकाला नहीं जा सका। लियाकताबाद, दुरंगी टाउन, नाज़माबाद अंडरपास, न्यू कराची में पानी मौजूद है। शहीद मिल्लत रोड, काला पुल, नर्सरी मार्केट में भी पानी जमा है। बारिश के बायस खराब गाड़ियां सड़कों पर जूं की तूं मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश से घड़े पड़ चुके हैं और बारिश के बाद मलीर नदी का सैलाबी रैला घरों में दाखिल हो गया है। शहर कायद में 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, कभी हल्की और कभी तेज बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। मजीद बता रही हैं रुताबा रूस, जो इस वक्त शाहरा फैसल पर मौजूद हैं। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। इस वक्त मैं शाहरा फैसल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो वक्फे से कभी दरमियानी बारिश तो कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा पहले जो है वो काली घटाएँ छाई, फिर शहर के मज़ाफ़ात में जिसमें गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, सरजानी टाउन शामिल है, वहाँ पर तेज़ बारिश जो है वो जारी है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल, मज़ीद अर्बन फ्लडिंग जो है वो शहर में हो सकती है। इसके ज़ेर असर जो है वो शहरियों को हिदायत की गई थी कि वो घरों में ही रहें। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बारिश से जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के बायस सिवेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर वहाँ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल वो बताएंगे। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन फैसल दिखाएंगे कि गटर जो हैं वो उबल रहे हैं और तमाम ये मेन सड़क है यूनिवर्सिटी रोड की, जहाँ पर पानी जो है वो जमा हो रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर गटर उबल रहे हैं, बारिश के बाइस पानी जो है वो जमा हो रहा है और काफ़ी बड़ी मिकदार में पानी जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में मौजूद है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों की बात की जाए तो लियाकताबाद है, गुलशन इकबाल है,
गुलिस्तान जौहर है, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कोरंगी लांडी, वहाँ पर भी इस वक्त पानी जमा है। कराची पुलिस चीफ उनका कहना है कि 17 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है और उसमें 4 अंडरपास हैं जिनको निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में इस वक्त जो है पानी घरों में दाखिल हो चुका है और फलाई इदारे जो हैं वो फैमिलीज़ को रेस्क्यू कर रहे हैं। तमाम जो सड़कें हैं, जो अहम सड़कें हैं, वो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2020 में भी ऐसी ही बारिश हुई थी। इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं, नाले साफ होने की वजह से पानी निकला, बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकल सकता। ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था, सुबह तक, मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर था। इसी जगह पे 2020 में, आप लोग काफ़ी लोग मेरे साथ थे, कुछ नए कुछ पुराने, 2020 में ऐसे ही बारिश हुई थी। बहुत मैंने क्रिटिसिज्म सुना है, खैर हम इसीलिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा सिर्फ आप पे क्रिटिसिज्म क्यों, ये हमारा काम है और हम इसको बुरा नहीं मानते। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा, सही बात। ये आप जब ये रोड पे फंसेंगे तो फिर ज़रूर इंतज़ामिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे। शदीद बारिश कराची में, शदीद बारिश 30 मिलीमीटर, अगर उसकी जगह पे 180 मिलीमीटर बारिश हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंडरपासेस बिल्कुल क्लियर हो। ज़रूर टाइम लगेगा। उन 14 में से 11 के करीब हम क्लियर कर चुके हैं, 2-3 में अभी पानी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के काम करने से हुई ना। एमकेएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ये कहते हैं कि 17 सालों की बदउनवान हुक्मरानी बारिश में सामने आ गई। हम तनकीद नहीं, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। कई इलाके ऐसे ज़ेरे आब आए कि घरों में पानी जमा हो गया। आप अपनी गलती का एतराफ़ क्यों नहीं करते? लोगों से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? हम ये तनकीद से ज़्यादा एक जायज़ा रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट कार्ड, वो जो होती ना, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। कई इलाकों में तो पानी, वो इलाके तो इस तरह ज़ेरे आब आए हैं कि उनके घरों के अंदर पानी है। कि आप क्यों अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते, अपनी कोताही का एतराफ़ नहीं करते, और आप क्यों जो है वो लोगों से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? आए ना, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। 17 सालों की बदतरीन, बदउनवान तरीन जो एक हुक्मरानी रही है, जो लूट मार रही है, ये आज ये सारी की सारी जो है वो ये गैर मामूली बारिशों की सूरत में सामने आ गई। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इन बारिशों से तबाही आई। मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला हों, यहाँ तक कि इस्लामाबाद हो, वहाँ पर मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिश की सूरत हाल हुई और जो तबाही हुई वो आप सबके सामने है। कल कराची शहर में जिस तरह तबाहकुन बारिश पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ों में हुई, लाहौर में हुई, पिंडी में हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला में हुई, उसी तरह की मूसलाधार बारिश कराची शहर में भी हुई। बारिश रुकने के बाद इंतज़ामिया को ये मौका मिला कि जहाँ जहाँ पानी की शिकायत आ रही है, निकासी की शिकायत आ रही है, उस निकासी को एड्रेस करें। और हमने अपनी इंतज़ामिया के साथ मिल के मुख्तलिफ़ इदारों ने अपना अपना काम करते हुए सिचुएशन के ऊपर काबू पाया। शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है।